क्या डिस्कस करना है आज? स्क्रू गेज कर रहे थे ना हम लोग डिस्कशन. Yes. What we have to discuss today? Yes, we were discussing the first test. अच्छा, first test discuss कर. Okay. Have we completed the discussion of first test? First test का discussion. We were on 7th question. Test 1, right? Yeah. Was revision test 14 है, right? 14 था ना वो test का. हाँ sir. Fine, I'm sharing the screen now. 7 तक किया था हमने. 8th भी कर लिया था. 8 भी कर लिया. So you have to go by 9, right? 9 से करना है ना? Yeah. Okay. So question number 9, what they're saying is a body moving with a velocity v has a momentum and kinetic energy numerically equal. What will be the value of? So there is a body which is moving with a velocity of v, has a momentum and kinetic energy numerically equal. So momentum or kinetic energy numerically equal है. What will be the relation for linear momentum? Mass into velocity, and kinetic energy will be equal to what? Half mv square. Now they are saying कि kinetic energy and momentum are numerically equal. So I can say that half mv square, m into v, this mass and mass will get cancelled, velocity से cancel हो जाएगा. So v I'll be having as 2 meter per second. Is it clear? Simple question है ना? So they are saying कि momentum और kinetic energy numerically equal है. So the value of kinetic energy is same as the value of linear momentum. So momentum का formula I know is mv, kinetic energy I know is half mv square. So we have just equated them, and we got velocity here as 2 meter per second. Is it fine? What was the relation between rho and K? Relation Between momentum and kinetic energy. There was some relation, right? Yeah. Can get from here only. I am having kinetic energy as, let's see how we'll be getting that. Kinetic energy I am having here is half mv square. Do one thing, multiply by mass in the numerator and denominator. So I'll be having kinetic energy as m square v square by twice of m. And since I'm having momentum as mv, so if v square both the sides, so I got v square as m square into v square. So instead of m square v square, we can write p square over here. So kinetic energy will be p square by twice of momentum, which means that p square is equal to 2m into kinetic energy, and the p here is under root of 2m into kinetic energy. So this is the relation between linear momentum and kinetic energy. Is it fine?
नाइशा क्लियर है? Yes. Okay. चलो we'll go to the next problem. Question number 10. A steel ball of mass 5 gram is thrown downward with a velocity of 10 meter per second from a height of 19.5 meter. It penetrates by 50 centimeter. The change in mechanical energy will be, it penetrates by what? 50 centimeter. It penetrates sand by 50 centimeter. The change in mechanical energy will be. कैसे निकालोगे चेंज आप? अगर हम लॉजिकली सोचे, so I am having a sand here. यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका है and this height they have given as 19.5 मीटर. ये हाइट दिया 19.5 मीटर. और क्या कह रहे क्वेश्चन में कि स्टील बॉल ऑफ मास 5 ग्राम इज थ्रोन डाउन टुवर्ड्स द डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. सो इसको मैंने नीचे फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से. आपसे क्या पूछा गया? अच्छा, ये 50 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट कर गया. इट हैज मूव्ड बाय 50 सेंटीमीटर. इसका मतलब 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 मीटर. सो 0.5 मीटर ये सैंड में पेनिट्रेट कर गया. द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज, देख कैसे निकालोगे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी? अगर मैं इसको डाटम ले लेता हूँ, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 19.5 मीटर एंड दिस इज 0.5 मीटर. सो दिस कंप्लीट हाइट हियर विल बी इक्वल टू व्हाट? 20 मीटर. ये वाला पॉइंट आपका 1 एंड दिस पॉइंट वी आर हैविंग हियर एज 2. सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1? Sorry, mechanical energy at point 1. So that is half mv square plus of mgh. So we are getting the mechanical energy at point 1, that is half mv square plus mgh. So mechanical energy at point 1 half into 5 into 10 raised to power minus 3, because 5 gram का था, into velocity, and that will be 20 का square plus 5 into 10 raised to power minus 3 into 10 into 20. So if I go for the further calculation of the mechanical energy at 1, so mechanical energy at 1 half into 5 into 10 raised to power minus 3 into 400 plus 5 into 10 raised to power minus 3 into G10 into what? 20. So if you solve it, this will be 200 here. So mechanical energy कितना हो जाएगा? 10. 5 to 10. ये हो गया 10 into 10 raised to power minus 3 plus 5 plus 5 into 2, ये हो जाएगा 10 again. So 10 raised to power 3 into 10 raised to power minus 3. So what will be the mechanical energy at point 1? 1 plus 1, that is equal to what? 2 joules. हाँ है ना? ये होगा ना मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1. करेक्ट. अब मुझे एक बात बताइए इसमें, सी है सर आपको वहाँ 400 कैसे मिला? कहाँ पे 400? दिस इज 20 का स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर. अच्छा, वेलोसिटी 10 दिया Please था. 10. हाँ हाँ. So 10 it was given, so 10 का स्क्वायर will be 100. So कितना हो जाएगा? What will be the value here? एडजस्ट करना पड़ेगा. So 5 into 10 raised to power minus 2, this will be 0.5 then, right? And plus 1. So mechanical energy at point 1 is 1.5 joule. करेक्ट. अब जरा देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया. जब ये यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट,
सैंड को टच करने से जस्ट पहले, मान लो इसका वेलोसिटी v है, so let's find out v first, कि v जरा निकाल। एक मिनट, समझ में आया बेटा मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1? इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना मिलेगा? अच्छा बाई 2 तो रह जाएगा, कितना मिलेगा? कैलकुलेटेड टू 0.5 by 2, so this will be 0.25, 0.25 plus 1, तो कितना आ जाएगा रिलेशन? 1.25, करेक्ट। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे आके 50 सेंटीमीटर नीचे पेनिट्रेट कर पाया, सो इफ इट इज पेनिट्रेटिंग बाय 50 सेंटीमीटर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आके रुक जाएगा। सो अगर रुक गया मतलब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, एंड आई हैव टेकन दिस डाटम, मतलब इधर का पोटेंशियल भी जीरो है। सो मैकेनिकल एनर्जी एट 2 कितना होगा? 0 + 0, तब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज सैंड के अंदर 0.5 सेंटीमीटर से पेनिट्रेट करने के बाद ये रुक गया है, एंड इफ इट इज स्टॉपिंग मतलब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो, एंड आई हैव टेकन दिस एज डाटम, मतलब इधर का पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू जीरो। आपसे चेंज पूछ रहा है, change in mechanical energy, so this will be 1.25 minus of 0, so change in mechanical energy will be equal to what? 1.25. This is the change in mechanical energy. Am I clear? ऋषि समझा बेटा आपको ये पॉइंट? हाँ सर। वेरी गुड, ये आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। So we have completed this now. आगे बढ़ते हैं। So the answer is 1.25. Question number 11. A body of mass 5 kg is thrown vertically upward with a kinetic energy of 490 joule. The height at which the kinetic energy of body becomes half of the original kinetic energy. ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनेगा। सो पहली बात, हमें मास कितना दिया है? 5 kg। आप इधर से बॉडी को फेंक रहे हो यहाँ से, और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 490 जूल, करेक्ट। सो यहाँ का हाफ होना चाहिए, इधर का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 490 बाय जूल। सो फॉर दैट दे आर आस्किंग अस हाइट। सो ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2, सो आई कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 will be equal to the mechanical energy at point 2. यहाँ का potential zero होगा, only it will have kinetic energy of 490 is equal to 490 by 2 plus mgh. Okay, so if you solve here 490 minus of 490 by 2, 5 into 9.8 लेंगे तो बेहतर होगा because 490 दिया इधर। So we had here as 490, मेरे पास था इधर कितना? 490 minus of 490 by 2, 5 into 10, 9.8 into what? h. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 490 by 2, 5 into 9.8, पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, 5 2s are 10, so get cancel 1, ये 49 कट करोगे ये 2 आएगा, so h will be equal to what? 10 by 2, so h will be equal to 5. Am I clear? Is it clear? Okay.
सबको समझ गया पॉइंट ये? फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलो विल मूव फॉरवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 11 डन। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है हम लोग का डिस्कशन से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखो। A particle is moving under the influence of a force given by F is equal to kx, where k is a constant and x is distance moved. The energy in joules gained by the particle from x is equal to 0 to x is equal to 3. कैसे करेंगे नाइस? Can you have any idea? Do you have any idea? आयशा कैसे करेंगे? So we can differentiate it. Why will be differentiating that? So can you go to the question? Yeah. I'll- This is the question. A particle is moving under the influence of a force and this is perfect NEET level problem. अच्छा इस ईयर जो नीट का एग्जामिनेशन होगा ना वो क्वेश्चन पेपर भी हम लोग क्लास में करेंगे। जो टॉपिक्स हमने पढ़ रखा है वो वाले टॉपिक है। So 17th July we have NEET paper. I'll get on 17th the question paper और 18 को या उसके बाद जब भी क्लास होगा सॉल्व इन द क्लास। जो चैप्टर्स हमने कर रखा है उसी चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स। हाँ बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? सर हम dx से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा विषय? Area of the graph. सो व्हाट विल हैव बाय द एरिया? एरिया से हमें एनर्जी कैसे मिलेगा? Work done होता है and work done is equivalent to energy. वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन जो होगा दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना? Kinetic energy, but here there is no potential energy mentioned. Why it is not why we are not having potential energy here? Because it's moving on the ground level in a straight line. Potential energy is defined for what kind of forces? Potential energy is Conservative. conservative. Is it a conservative force? Is it a conservative force? Just see the force and answer me. Is it conservative? हाँ दिशा, conservative है force? No. Anyone? दिया, सीता, कोई बता सकता है conservative है? देखो नेचर में जो फोर्स होता है ना, मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर कि देयर आर मेजरली 3 कैटेगरीज ऑफ फोर्स व्हिच इज कंजर्वेटिव। दे आर कांस्टेंट फोर्स, जैसे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। अगर आप ऐसा फोर्स लेते हो ना वो कंजर्वेटिव होता है। सो ऑल द कांस्टेंट फोर्सेस एक्टिंग इन द नेचर आर कंजर्वेटिव। जितने भी कांस्टेंट फोर्स लगेंगे ना नेचर में वो सब कंजर्वेटिव। अगर कोई फोर्स इस फॉर्मेट का है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, so if there is a force here of the format fx I cap plus fy j cap plus fz k cap, इस फॉर्मेट का अगर कोई फोर्स मतलब फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा दिया मान लो 2x I कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z k कैप, इस फॉर्मेट का कोई फोर्स है ना, ये भी कंजर्वेटिव होता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स में कांस्टेंट फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये कांस्टेंट फोर्स है, राइट? सो नेचर में जितने भी कांस्टेंट फोर्स होंगे दे ऑल विल बी कंजर्वेटिव, पहला। दूसरा पॉइंट जो फोर्स है जिसका फॉर्मेट है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस फॉर्मेट का फोर्स है, दे आर ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। थर्ड कैटेगरी जो होता है वो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो फॉर परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट का भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अब क्वेश्चन में दिया तो नहीं है बट फोर्स एफ एक्स दिया है एंड दे आर सेइंग कि पार्टिकल मूव कर रहा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 पे, है ना? पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है? x इज इक्वल टू 0 टू
x इज इक्वल टू व्हाट, 3 मीटर पे पार्टिकल मूव कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है, तो आपसे वर्क डन पूछा गया, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स Fx है और डिस्प्लेसमेंट भी x एक्सिस की तरफ है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दिस विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा समझ में आ गया? सो नेचर में जितने भी कांस्टेंट फोर्स होते हैं, 2, 5, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 19 न्यूटन, जितने भी कांस्टेंट फोर्स होंगे दे विल बी कंजर्वेटिव, पहला। दूसरा पॉइंट बनेगा कि अगर कोई फोर्स Fx i कैप, Fy j कैप प्लस Fz k कैप के फॉर्मेट का है, वो भी कंजर्वेटिव होता है। और थर्ड कैटेगरी में जो फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल है, वो अभी आपको नहीं समझेगा, आई विल एक्सप्लेन, बाद में करेंगे, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो एक kx दिया है, x एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी x की तरफ ही है, तो ये कंजर्वेटिव, ठीक है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या था कॉन्सेप्ट? वर्क डन जो होता है बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, ये हमारा था वर्क एनर्जी, सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं बिकॉज फोर्स वेरिएबल है, सो विल हैव टू इंटीग्रेट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F into dx. So change in kinetic energy will be equal to what? Kx into dx. We have to go from 0 to 3. So change in kinetic energy कितना हो जाएगा? This k is a constant, will have outside x into dx from 0 to 3. So change in kinetic energy will be k x square by 2 from 0 to. So if I further solve it, change in kinetic energy k 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर बाय 2, so which means ki change in kinetic energy will be k into 9 by 2, which is what? 4.5. So change in kinetic energy will be equal to what? 4.5 k joule. Is it clear? ऐसा तो हमें इस केस में डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा बेटा, विल हैव टू इंटीग्रेट टू गेट वर्क। इसी था, क्लियर? समझ गया कैलकुलेशन? ये वर्क डन के लिए हमें, हाँ वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज ये फोर्स वेरिएबल था, कांस्टेंट फोर्स रहता तो डायरेक्टली आप F into S into cos थीटा कर लेते, बट ये फोर्स वेरिएबल था तो डायरेक्ट होगा नहीं, सो फॉर दैट वी हैव टू इंटीग्रेट। इज इट क्लियर? पर अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है फिर हम पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं कंसिडर करें? कर सकते हैं, तो आप एक काम करो ना, x इज इक्वल टू 0 पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर x इज इक्वल टू 3 पे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा पॉइंट है, वैसे भी करके देखते हैं, ये तो एक मेथड हो गया एंड दिस इज द इजियर वन। मेथड 2, सॉरी मेथड 1 ये हो गया, विल गो बाय मेथड 2। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी गेट पोटेंशियल एनर्जी, या होता क्या है? हाँ क्या होता है? mg नहीं बेटा, पहली बात है वो mgh है, अ, और वो आप जो बोल रहे हो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ, तो व्हाट इज इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी? mgh होता है एंड दैट mgh इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई एम नॉट आस्किंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हाँ विषय कुछ याद है, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पीछे का रिवीजन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Energy possessed by a body at rest. जिसका मतलब मूविंग बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। कोई बॉडी अगर 5 मीटर ऊपर चल रहा है डाटम से, तो 5 मीटर ऊपर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ना, और बॉडी रेस्ट में थोड़ी है, मूव कर रहा है, इट इज हैविंग द वेलोसिटी।
It Mechanical depends on energy. the position. Depends on the position. Okay, but what is that? Potential energy होता क्या है? Mechanical energy minus kinetic energy. No, we are just playing on the same relation. मेरा वो नहीं point है. I want the crux कि मैकेनिकल एनर्जी आया किधर से, क्या होता है वो. See, if you remember, Minus work done by conservative force. yes, ये पूछ रहा था. So change in potential energy is negative of work done by conservative force. ये मेरा potential energy का change होगा. ठीक. So change in potential energy will be equal to minus of integration. work done निकालने के लिए f into dx करना पड़ेगा. तो change in potential energy कितना हो जाएगा? minus of kx into dx from 0 to 3. And change in potential energy is equal to minus of k x square by 2. Directly I'm doing here. 9 हो गया. So change in potential energy कितना हो जाएगा? k into 9 by 2, which is 4.5. Or I can say the potential energy will be equal to minus of 4.5 k joule. अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था k into x. क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है इस प्रोसेस में? इज देयर एनी काइंड ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नहीं ना, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एंड दैट इज kx, और kx कंजर्वेटिव है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा ऑफ कोर्स, राइट. सो इस पर्टिकुलर केस में मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन conserved as there is no non-conservative force acting on the body. ठीक है. सो बॉडी पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा. अब देखो, सिंस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो जितना अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, व्हिच इज इक्वल टू 4.5. ऐसे सोचिए, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी जो मेरा होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी मेरा कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में उतना ही गेन होता है. सो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज 4.5 k joule and that will be the gain in kinetic energy again 4.5 k joule. Am I clear? ऐसा फाइन, समझ गया पॉइंट यहाँ तक? Yeah. चलो, we'll go to the next one. ये डन हो गया 12. क्वेश्चन नंबर 13. A particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement. Okay, retardation, its loss in kinetic energy for any displacement x is proportional to. Work on this. So क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है. So there is a particle moves in a straight line with retardation proportional to its displacement. Retardation जो है वो displacement के proportional है. Its loss in kinetic energy for any displacement x is proportional to. Okay. So retardation कितना दिया है? Retardation is proportional to what? X. So sign of proportionality को हटाएंगे, so we have to add a constant here. Let me add that c, and minus हो जाएगा c into x, because retardation है तो kinetic energy decrease करे, acceleration negative होगा. Now can I write acceleration as, एक तो इसका रिलेशन होता है dv by dt, और अगर आपको याद हो एक रिलेशन और होता है एक्सेलरेशन का, v into dv by dx. तो एक्सेलरेशन को हम dv by dt भी लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को हम v into dv by dx भी लिख सकते हैं. यहाँ रख दो, एक्सेलरेशन की जगह पे v into dv by dx
माइनस ऑफ सी इंटू एक्स। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इंटू डी वी माइनस ऑफ सी बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है x इंटू डी। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, किसी भी x पे मान लो वेलोसिटी v हो। सो इफ यू सॉल्व इट, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v माइनस ऑफ c x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू x। सो आई एम हैविंग हाफ इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c बाई 2 व्हाट x स्क्वायर। एक काम करो, मास में दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, या एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं बॉडी का वेलोसिटी u था। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये u है यहाँ का लिमिट, लोअर लिमिट, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में पता नहीं है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। so let me have u here on the safer side, v square minus u square is equal to minus of c by 2 into what x square। एक काम करो, मास से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो व्हाट आई विल बी हैविंग, हाफ इंटू m into v square minus of u square c into m by 2 into what x square। so half mv square minus of half mu square minus c m by 2 into kx square। so ये मेरा ये वाला जो टर्म है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये टर्म है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा that will be minus of cm by 2 to x square, and therefore we had loss in kinetic energy is directly proportional to x square। so that is the final answer। am I clear? क्लियर है पॉइंट सभी को? चले मूव फॉरवर्ड। अंकिता समझ गया बेटा कैलकुलेशन इसका? हाँ सर। ओके, चलो विल गो अहेड। so question number 13 done, answer will be x square, the first option। yeah, चलो next one, question number 14, two springs of spring constant 1500 Newton per meter and 3000 Newton per meter respectively are stressed with the same force, they will have potential energy in the ratio। सेम फोर्स लगाया आपने। so we had two springs, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिया है 1500 न्यूटन पर मीटर, और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 3000 न्यूटन पर। so two springs of spring constant 1500 Newton per meter and 3000 Newton per meter respectively are stressed with the same force। so दोनों पे फोर्स सेम लगा है। so ratios of their potential energy are। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये अगर आप K पकड़ लेते हैं K1 को, तो ये कितना हो जाएगा 2K। मतलब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका डबल है, क्योंकि 1500 है और ये 3000 है। so अगर मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को K लेता हूँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2K न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ K एक्स स्क्वायर, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है K इंटू एक्स। अगर हम सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, हाफ ऑफ K एक्स स्क्वायर, एक काम करो, एक K से न्यूमरेटर में और एक K से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा K स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ट्वाइस, एंड K स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट F स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ, ये रिलेशन बनेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी U1 कितना हो जाएगा F स्क्वायर बाय 2K, और पोटेंशियल एनर्जी F2 कितना हो जाएगा F स्क्वायर बाय फोर्स
क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट फोर्स आर सेम इन टू केसेस। सो दोनों ही केस में फोर्स क्या है, सेम। सो विल बी हैविंग द रेशियो ऑफ दिस u1 by u2 f square by 2k1 by f square by 2k. So if you solve here, potential energy u1 by u2 f square by 2k1 into 2k2 by f square. F square will get cancelled, 2 and 2 will get cancelled. So अगर हम potential energy का ratio निकाल देंगे, potential energy of 1 by potential energy of 2, this will be k2 by k1. So potential energy 1 by potential energy 2 कितना हो जाएगा, 3000 by 1500. This will get cancelled, 2 हो गया. So potential energy 1 by potential energy 2 will be equal to. Am I clear? ऋषा समझ गया बेटा कैलकुलेशन इसकी? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते। गुड क्वेश्चन, इजी था लेकिन अच्छा सवाल। सो 2:1 होगा इसका रेशियो। या 2:2। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? A bomb of mass 9 kg explodes into two parts. One part of mass 3 kg moves with velocity of 16 meter per second. Then the kinetic energy of the other part is. So, एक बॉम्ब है जिसका मास है 9 kg, एक्सप्लोड कर गया। They are saying us कि there is a bomb here जिसका मास है 9 kg का, and it got exploded into two particles, है ना। इसका मास दिया है कितना, 3 kg, और ये मूव कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड। वी हैव अनदर मास ऑफ व्हाट, 6 kg, और ऐसा ये मास हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्ट। इसको मैं ए पकड़ लेता हूँ, ये बी पकड़ लेता हूँ। आपसे पूछा गया फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसका काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया। तुमसे पूछूंगा लॉजिक, मुझे बताना। ये जब बॉम्ब एक्सप्लोड किया है तो इस प्रोसेस में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड किया है तो बॉम्ब के एक्सप्लोजन वाले प्रोसेस में क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हुआ है सिस्टम पे? हाँ, एक्सप्लोड कर रहा है ना बॉम्ब। सो आई वाज हैविंग अ पार्टिकल ऑफ मास 9 kg का था, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या ड्यूरिंग एक्सप्लोजन? नहीं। नहीं लगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं? हाँ नाइशा, क्या इस रहेगा। क्यों रहेगा? फ्रॉम विच कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया ये बात? पहला तो ये क्लैरिटी है कि बॉम्ब एक्सप्लोड किया है तो एक्सप्लोजन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, वो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड करेगा। बॉम्ब विल गेट एक्सप्लोडेड ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। तो बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये बॉम्ब इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड कर रहा है तो कैन वी से कि इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा?
यू आर सेइंग कि हाँ रहेगा कंजर्व। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का पॉइंट आया किधर से? ये कॉन्सेप्ट किधर से आया है लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का? देखो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अंकिता? अंकिता, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? विषय क्या है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ? हाँ नाइशा, क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ? External force is equivalent to rate of change of moment. करेक्ट, एक्सेलेंट। एक्सटर्नल फोर्स विच वी अप्लाई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये क्लियर होना चाहिए, का ध्यान में रहना चाहिए। सो अगर आप बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहे हैं, मतलब जो भी फोर्स लगा है वो इंटरनल लगा है, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग हियर, इंप्लाइज कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब dp बाई dt जीरो होगा, which means कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू जीरो। टाइम कैन नेवर बी जीरो, सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल मोमेंटम। मतलब मोमेंटम मेरा कंजर्व है। सो अगर आप किसी भी सिस्टम पे या किसी भी बॉडी पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अगर आप किसी भी बॉडी पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एक मोमेंटम हो गया इनिशियल, ये p1। सो आई कैन से एक्सटर्नल फोर्स सिंस मेरा जीरो है, so therefore momentum initial will be equal to momentum final। so initial momentum जीरो है क्योंकि ये बॉम्ब रेस्ट में था। फाइनल कितना हो गया? 3 into 16 is equal to what? plus 6 into v। so अगर हम सॉल्व करेंगे, 6 into v will be minus 3 into 16 2, this is 8। so v कितना हो गया? माइनस ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये अगर इधर जा रहा है दिस विल गो दिस साइड, a velocity of what? 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। so which means that kinetic energy of B will be equal to half into mass I am having here, 6 into 8 का square, this is 3। so kinetic energy at B 64। so which will give us kinetic energy at B कितना हो जाएगा? 192। am I clear? विषय समझा कैलकुलेशन इसका? हाँ सर। वेरी गुड। तो फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए, है ना? ऐसे भूलोगे तो काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, चलो आगे बढ़ो। सो इसका आंसर है 192, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, AI-EEE 2007। AI-EEE था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो जेई मेंस अभी हो गया। हम लोग के टाइम पे यही था AI-EEE, अभी वो जेई मेंस हो। ओके, so question says the velocity of particle v is equal to v naught plus gt plus ft square if position is x is equal to 0 at t is equal to 0, then the displacement after a unit time, एक यूनिट टाइम के बाद। इसी है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो हमें दिया है क्वेश्चन में v is equal to v naught and plus of gt
प्लस ft स्क्वायर। और क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। आपसे x का वैल्यू पूछा गया है एट t इज इक्वल टू व्हाट 1। कैसे करेंगे, नाउ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx बाय dt, यहाँ पे प्लेस कर दो। सो dx बाय dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे इसका v नॉट ft स्क्वायर इंटू व्हाट dt। सो t जब 0 था तो x भी 0 था, t 1 होगा तो ये x हो जाएगा, which implies dx डायरेक्टली लिखता हूँ, आई होप इतना इंटीग्रेशन आपको समझेगा। सो dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिला है, x फ्रॉम 0 टू x v नॉट इंटू t फ्रॉम 0 टू t प्लस gt स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t 0 टू 1 प्लस ft क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू। सो इफ यू प्लेस द लिमिट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू v नॉट प्लस g बाय 2 प्लस f बाय 3। Am I clear? क्लियर है बेटा सबको पॉइंट ये? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17। इसी था लास्ट क्वेश्चन, समझा ना बेटा आपको 16 नंबर? इसी था 16 समझा अच्छे से? ओके 17 पे जाते हैं। तो अब हम लोग तीनों टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेंगे, इसका मतलब पता है कितने, कुछ 45 क्वेश्चंस थे। आई गेस इस पेपर में 25 क्वेश्चंस, सॉरी 30 है। सो 45 प्लस 30 विल बी 75 एंड लास्ट पेपर में शायद 25 था। 75 प्लस 25 विल बी 100, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट खत्म करते हैं। A ball of mass 2 kg, another ball of mass 4 kg are dropped together from 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratios. क्या होगा kinetic energy का रेशियो? हाफ फॉल किया, ये फीट में दिया है, सो बॉदर अबाउट दैट। गो ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉल है जिसका मास आपको दिया हुआ है, दे आर गिविंग अस व्हाट 2 kg, एक बॉल का मास, और दूसरे बॉल का मास दिया है 3 kg। दोनों इक्वल डिस्टेंस फॉल किया है बाय द अमाउंट x एंड दैट इज दे हैव गिवन अस 30 फीट, है ना। सो मैं फीट में नहीं लूंगा, सीधा मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना। सो एक काम करते, रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा। सो v स्क्वायर इनिशियली 0 होगा बिकॉज आपने ड्रॉप किया है g इंटू एक्स। सो v स्क्वायर इज 2gx एंड v इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 2gx। मतलब ये जो बॉल है इसका भी वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2gx। इसका भी हो जाएगा रूट ऑफ 2gx। सो अगर हम फर्स्ट बॉल का काइनेटिक एनर्जी निकाले 1 इज हाफ mv स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू रूट ऑफ 2gx का होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2gx
So which implies that kinetic energy 1 2gx joule. Exactly same way में अगर आप second case में kinetic energy निकालोगे here, so this is half into 4 root of 2gx का whole square. So kinetic energy 2 कितना हो जाएगा, half into 4 2gx, this will get cancelled. So kinetic energy 2 will be equal to what, 4gx. आपसे रेशियो पूछा गया है दोनों का, क्या रेशियो मिलेगा हमें, that kinetic energy 1 over kinetic energy 2, that is 2gx by 4gx, gx and gx will get cancelled, ये आ गया 2. So if you have to write, कितना हो जाएगा 1 by 2, and अगर हम रेशियो में के फॉर्म में लिखे, kinetic energy 1 is 2, kinetic energy 2 it is 1 is 2. This is, am I clear? Am I clear? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? दिया समझा बेटा आपको इसका कैलकुलेशन? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. We have done with this. Next question number 18. 18 question number क्या कह रहा है, a body is moving with uniform acceleration, describes 40 meter in first 5 seconds and 65 meter in next 5 seconds. So initial velocity of the particle is, first 5 second में कितना चला है, 40 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना चला, 65 मीटर. सो उसका इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, करोगे ट्राई? ऐसा विल यू ट्राई टू सॉल्व दिस? 18. यस। आई होल्ड फॉर अ मिनट, देखते कर पाते कि नहीं. सिंपल प्रॉब्लम. ओके, सो क्या कह रहा है, इन फर्स्ट 5 सेकेंड it is moving by 40 meter. In next 5 seconds it is moving by 65 meters. यही कह रहा है ना क्वेश्चन में. सो 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बारे में बात करते हैं. सो फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड तक बात कर, क्या करोगे आप,
s is equal to ut plus half at. So I am assuming that कि मेरा acceleration यहाँ पे constant. s कितना हो जाएगा? फर्स्ट केस में कितना चल रहा है वो 40 मीटर. So 40 is equal to u into 5 plus half into a into 5 का. So 40 is equal to कितना हो जाएगा? 5 u 25 by 2 into a. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. So ये मैंने किया फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए, मतलब फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड्स के लिए कैलकुलेशन. अब अगला देखते हैं. फ्रॉम, एक काम करते हैं, 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड तक देखते हैं कितना डिस्टेंस चलेगा. 40 प्लस 65 विच इज 105. यूज कर दो. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. 65 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 105 u into 10 plus half into 10 into t square. So 105 will be equal to 10 u. एक काम करते हैं, इसको रखते हैं प्लस 10 by 2 into what? t square. एक काम करो, इसको 2 से काट दो. So I am having 105 10 u plus 5 t square. ये मेरा इक्वेशन नंबर 2. 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजी. So कितना हो जाएगा? 80 is equal to 10 u plus 25 a. 10 का लिया, अच्छा उल्टा कर दिया. So here यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. So this is what I have. इसको आप इक्वेशन नंबर 3 पकड़ लीजिए. यहाँ पे हाफ इंटू ए, इसकी जगह पे हम 10 करना पड़ेगा ना, 10 का स्क्वायर. सो कितना आ जाएगा ये? 105 10 u प्लस 100 by 2. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ठीक है. अब क्या करेंगे? एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर दो. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करिए. कितना आ जाएगा? 105 10 u प्लस 100 by 2 into a. ये कितना आएगा? 80 is equal to 10 u plus 25. ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो 105 प्लस 105 माइनस 80 कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 25? 25 is equal to 100 by 2 minus of 25 to 8. So 25 is equal to what? 100 minus of 50 by 2. So 25 is equal to 50 by 2. 1. So acceleration I am having here is of 1 meter. मुझे acceleration नहीं चाहिए. I want to have this u. इस पे वर्कआउट करते हैं. They had 80 is 10 u plus 25 into 1. Acceleration हमें 1 मिल गया. So this is 80 minus of 25 is equal to 10 u. So 80 minus 25 कितना हो जाएगा? 60 is equal to 10 u. So this 0 and 0 will get cancelled. So u will be equal to what? 6 meter. Is it clear? चेक द कैलकुलेशंस बराबर किया है ना? 105 80 सर 60 नहीं आ रहा इधर एंड में. 80 minus 25. 80 minus 25, अरे 55 होगा ना? हाँ. So ये होगा 55 कैलकुलेशन में. 55 is equal to what? I am having 10 u
So which means u will be equal to what? इसका मतलब हो गया कि u मेरा आएगा 55/10, so u will be equal to 5.5 meter per second. Correct. The answer is it clear? आया था ना ऐसा तुम्हारा आंसर? हाँ सर। ओके गुड, आगे बढ़। अंकिता समझा बेटा आपको कैलकुलेशन, और डू यू गॉट द आंसर? Yeah, sir. खुद से आ गया था? हाँ. Excellent. चलो आगे बढ़। Excellent. So done with this. Answer is C, 5.5. Okay. Question number 19. देखो जरा एक बार 19 number. The engine of motorcycle can produce a maximum acceleration of 5 meter per second square. Its brake can produce a maximum retardation of 10 meter per second square. What is the minimum time in which it can cover a distance of 1.5? Question. खुद से जरा सोचो, मैं एक मिनट। चलो चलो, एक्सेलेंट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, करके देखते हैं। सो एक्सेलरेशन कितना ले सकता है वो? 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन कितना ले सकता है मैक्सिमम? एक्सेलरेशन इज ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और रिटार्डेशन कितना ले सकता है वो? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम। एक काम करते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बना। सो वी आर हैविंग हियर इस एक्सिस पे वेलोसिटी और इस एक्सिस पे टाइम। अच्छा, लॉजिकल बात है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये एक्सेलरेट करेगा थोड़े टाइम तक, बाद में डीएक्सेलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी एट द लास्ट विल बिकम व्हाट? 0। ठीक है, अब जरा देखो, ये आपका मान लो एक्सेलरेट करने का टाइम आई एम हैविंग हियर इज दिस t1। डीएक्सेलरेट करने का टाइम क्या है? t2। ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, सो v मैक्सिमम कितना होगा? वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। सो अगर हम इसका स्लोप निकाले, सो कैन आई से दैट v मैक्सिमम माइनस 0 बाई t1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a। सो v मैक्सिमम कितना हो जाएगा? t1 इज इक्वल टू व्हाट? 5, क्योंकि यहाँ का इस केस का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे देखो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो t1 कितना होगा? v मैक्सिमम बाय 5। ठीक है, अच्छा t2 कितना होगा जरा देखो, इधर बात करते हैं इस वाले इंटरवल। यहाँ का फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल कितना है? v मैक्सिमम 0 माइनस ऑफ v मैक्सिमम
by T2 is equal to retardation minus of 10. So V maximum by T2 is equal to what? Minus 10. This will get cancelled. So T2 कितना हो गया? V maximum by 10. I can write here that T2 is equal to what? Can I write 1 by 2 into V maximum by 5 and V maximum by 5 किसके बराबर है? T1. So T1 किसके बराबर हो जाएगा? Twice of T. ये T1 हो गया is equal to twice of T. So अगर मैं T1 को T पकड़ लेता हूँ तो T2 कितना हो जाएगा? T1 that I got from here. मुझे पता है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है, तो फाइनल V मैक्सिमम इनिशियल 0, V मैक्सिमम माइनस T by T1 is equal to 5. So I got T1 here as V maximum by 5. सेम वे में यहाँ देखेंगे फाइनल 0 इनिशियल V मैक्सिमम by T2 is equal to रिटार्डेशन ऑफ माइनस 10. सॉल्व किया तो ये आ गया. Now V maximum by 10 is my T2. इसको लिख सकते हैं 1 by 2 into V maximum by 5 and V maximum by 5 is what? T1. So T1 इधर हो गया. So T1 is equal to twice of T. तो अगर आप इसको T ले लोगे ये क्या होगा? 2T. Am I clear? अब जरा देखिए, वंस वी हैव दिस, हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है. व्हाट इज द एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, V मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5 into T1 और T1 को मैंने T पकड़ा है, सो V मैक्सिमम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू व्हाट? 5 into T मीटर पर सेकेंड. सो हियर V maximum will be 5T मीटर पर सेकेंड. कि V मैक्सिमम था 5 into T1 एंड T1 को मैंने T पकड़ रखा है, तो V मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5 into T. अब देखो, एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ will give डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. so, इस केस में एरिया कितना है? A1. यहाँ का एरिया ले लो. कैन आई से दैट A1 प्लस ऑफ A2 1.5. so half into V maximum into T1 V maximum to T2. अच्छा, ये 1.5 किलोमीटर, so multiplied by 10 raised to power 3, get that into meter. 1.5. ठीक है, कितना आ जाएगा? हाफ को कॉमन ले लिया और V मैक्सिमम को कॉमन ले लिया, V मैक्सिमम को भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा? T2 प्लस T1. हाफ इंटू V मैक्सिमम कितना था? 5T. So V maximum I am having 5 of T into T2 plus T1. So what is T2 here? T2 कितना है? T2 was, sorry, T1 was twice of T2. So T1 था मेरा T2 का डबल. एक मिनट. T1 is equal to twice of. So अगर मैंने इसको T पकड़ा तो ये T by 2 हो जाएगा. T by 2 हो जाएगा. So here also maximum 5T. So T1 वो मेरा T2 T2 था, T1 को मैंने T पकड़ा तो T2 हो जाएगा T by 2. हाँ बराबर, T by 2. So ये कितना हो जाएगा? T by 2 प्लस ऑफ T. ठीक. सो कट किया 300. हाफ इंटू T प्लस 2T प्लस T by 2
300. सो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 300. ठीक है, नाउ सॉल्व कर देंगे इसको. दिस विल बी 100, 2 इंटू 2 4 हो गया. सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 400. सो यहाँ से t कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 400. सो t इज इक्वल टू व्हाट, 20 सेकेंड्स. तो यहाँ का टाइम मेरा t1 कितना मिला, t के बराबर था 20 सेकेंड्स. और t2 कितना हो जाएगा, 20 बाई 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 सेकेंड्स. सो टोटल टाइम अगर आप निकालोगे, दिस इज t1 प्लस ऑफ, ये मेरा क्या हो गया टोटल टाइम, t1 प्लस t2. So this is equal to 20 seconds plus 10 seconds. So total time will be equal to what? Aisha, am I clear? It's a good problem. अच्छा सवाल है. विषय समझ गए बेटा कैलकुलेशन इसका प्रॉपरली? हाँ सर. वेरी गुड. सो गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा. दिया, आपको क्लियर है कैलकुलेशन? दिया, क्लियर है कैलकुलेशन इसका? या सर. ओके. अंकिता? हाँ सर. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर से करना है इसको जरूर. बहुत लॉजिक लगेगा इसको सॉल्व करने में. नाइसा, आपको क्लियर है? इशिता? यस. इशिता, आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? या सर. गुड क्वेश्चन. एक बार दोबारा जरूर करना है इसको इशिता. सर मैंने दूसरा मेथड से किया था. डिस्टेंस दिया है ना 1.5, तो मैंने उसको एक्सेलरेशन में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और रिटार्डेशन में 1.5 माइनस एक्स, ओके, और फिर काइनेमैटिक का लिख चले, लिया. चलेगा, चलेगा, वैसे भी कर सकते हैं. और एक्चुअली वो भी मेथड अच्छा है. एक एक्सेलरेशन को वाले को आप एक्स डिस्टेंस ले लो, वो 1.5 माइनस एक्स हो जाएगा. तो पहले इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दो, तो वहां से आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 20. A body moves for a total of 9 seconds starting from rest with uniform acceleration and then with uniform retardation, which is twice the value of acceleration, and then stops. The duration of uniform acceleration is वही same problem है, सब पिछला वाला किया. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है कितने देर के लिए, 9 सेकंड्स के. पहले केस में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन दिया है, और इसका डबल जो होगा 2a, ये रिटार्डेशन. अगर हम प्लॉटिंग करें इसका वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का, हाउ विल बी डूइंग दैट? इस एक्सिस पे वी आर हैविंग वेलोसिटी और इस एक्सिस पे टाइम है. सेम प्रॉब्लम. ये एक्सेलरेट कर रहा है फर्स्ट हाफ के लिए, तो ये वाला टाइम आप टी ले लो, तो ये टाइम कितना होगा, 9 माइनस ऑफ टी. टोटल टाइम 9 सेकेंड्स था, तो ये 9 माइनस ऑफ टी होगा. आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो टी पूछ रहा है ना.
So they are asking us to get the time of uniform acceleration. Of uniform acceleration, ये T पूछ रहा है। पहले तो V maximum निकाल देंगे, just like the previous case. V maximum कितना हो जाएगा? Nothing but A into T, स्लोप से एरिया। अब कैसे करोगे? देखो इधर से देखेंगे ये वाला पॉइंट O A B. So if I go here for OA, OA से अगर आप देखोगे OA वाले पाथ में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V मैक्सिमम माइनस ऑफ 0 बाय T. सो V मैक्सिमम कितना हो जाएगा? A इंटू T. ये मेरा इक्वेशन नंबर हो। अगर हम AB के लिए देखेंगे तो रिटार्डेशन माइनस मेरा 2A है, V मैक्सिमम, सॉरी दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी आपका 0 था, तो दिस इज 0 माइनस ऑफ V मैक्सिमम बाय टाइम कितना लगा है? 9 माइनस ऑफ। सो आई एम हैविंग हियर माइनस ऑफ 2A माइनस ऑफ V मैक्सिमम बाय 9 माइनस ऑफ 2. सो दिस फ्रॉम हियर, यहाँ से मिला हमें A ट्वाइस ऑफ A 9 माइनस ऑफ T इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम. ये इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन का देखो ये सेम है V मैक्सिमम. सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा हमें? A इंटू टी इज इक्वल टू 2A 9 माइनस ऑफ A से A कैंसिल हो गया, सो T कितना हो जाएगा? 18 minus of 2T, so this will come this side. 3T is equal to 18, 6. So T will be equal to what? 6 seconds. This is the answer. Am I clear? जैसे तुम्हारा आया था इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ सर. कैसे किया? How you have done this? सर प्रीवियस प्रॉब्लम के साथ किया. अच्छा x निकाल के, हाँ लेकिन वहां तो डिस्टेंस दिया नहीं है 1.5 जैसा. सर, पिछले वाले प्रॉब्लम में भी एक्सेलरेशन डबल है पहले वाले के, हम्म. और जो टाइम है वो 30 सेकेंड है, तो जो 5 मीटर ऑफ एक्सेलरेशन है उसके लिए 20 सेकेंड्स लगा है, और 10 मीटर है उसके लिए 10 सेकेंड्स लगा है. Okay. मतलब अगर एक्सेलरेशन हाफ है तो टाइम डबल है. Okay. वैसे इसमें अगर 9 सेकेंड है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके एक्सेलरेशन के लिए 6 सेकेंड और रिटार्डेशन के लिए 3 सेकेंड. Excellent. Super. अच्छा लॉजिक लगा है. Very good. Fine. So correct answer for this problem is 6 seconds. आगे बढ़ो. Question number 21. The maximum height attained by a projectile when thrown at an angle theta with the horizontal is found to be half of the range. Then theta is equal to बहुत easy problem. Range का half है maximum height. So आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, लेट्स से u मीटर पर सेकंड से, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है. प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, क्या करेंगे? लैंड कर जाएगा, एंड दिस विल बी द रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल. ये आपका मैक्सिमम हाइट होगा, और मैक्सिमम हाइट जो है वो रेंज का हाफ. हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g, and sin 2 theta can be also written as u square 2 into sin theta into cos theta by g. यही है ना रिलेशन?
क्लियर? सो अभी हम इसका वैल्यूज पुट करते हैं. सो हमें क्वेश्चन में दिया है दैट हाइट इज इक्वल टू रेंज बाय 2. सो हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू स्क्वायर into 2 into sin theta into cos theta by g and g will get cancelled. 2 से 2 cancel हो गया. u square will be eliminated. एक sin theta भी cancel हो जाएगा. So I am having sin theta by cos theta is equal to 2 and that means 2 के बराबर हो गया. So theta will be equal to what? सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू इज इट क्लियर? ये पूरा मैकेनिक्स हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और ऐसे रिवीजन करेंगे. मैंने बोला था ना आपको यूनिट डायमेंशन के बाद रिवीजन है, वैसे ही करेंगे. मैं फिर से 2 टेस्ट लूंगा और वो टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा पूरे मैकेनिक्स जो हमने 9th में पढ़ा है वो सब. इज इट क्लियर? इसमें आपको ज्यादा गेन होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा. नाइसा समझ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 21? Yes. ओके चलो विल गो टू क्वेश्चन नंबर 22. शेयरिंग द स्क्रीन. 22 डिस्कस करते हैं. A man can throw a stone to a maximum distance of 80 meter. The maximum height to which it will rise is. अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना फेंक रहा है? 80 मीटर पे. यानी रेंज मैक्सिमम है. रेंज मैक्सिमम कब होता है बेटा? व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हाट? हाँ रेंज मैक्सिमम कब होगा? 45 degrees. 45 degrees. Okay. So they are giving us range maximum is equal to what? कितना दूर तक फेंक पा रहा है वो? 80 मीटर. मैक्सिमम हाइट विच इट कैन थ्रो. आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम height to which he can throw ball. Okay. So range का फॉर्मूला क्या है? u square sin of 2 theta by g. रेंज मैक्सिमम होगा when theta is 45. So रेंज मैक्सिमम हो जाएगा u square sin of 90 डिग्री by g. यानी रेंज मैक्सिमम कितना दिया है? 80 u square by g. सो ये वैल्यू अपने पास रखते हैं. मेरे को रिलेशन पता है हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है. अब अगर मुझे हाइट को मैक्सिमम चाहिए, सो फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा. सो इफ आई वांट टू हैव हाइट मैक्सिमम, सो थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. ना हो जाएगा हाइट मैक्सिमम, सॉरी थीटा 90 के बराबर होगा ना मैक्सिमम हाइट के लिए, क्योंकि साइन थीटा 1 होता है. सो फॉर मैक्सिमम हाइट सीधा लिख देता हूँ. हाइट तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. सो हाइट मैक्सिमम विल बी इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर बाई 2g. यू स्क्वायर बाई जी ये जो टर्म है इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 80. सो हाइट मैक्सिमम 80 by 2, 40 here. So height maximum will be equal to what? 40 meters. Am I clear?
क्लियर है कैलकुलेशन यहाँ तक? चेक कर लो एक बार। सर वो लोग ने बोला कि अगर मैक्सिमम रेंज 80 मीटर है तो तभी हाइट कितना होगा? तभी पूछ रहा है कि जनरल पूछ रहा है, पूछ लेते हैं। देख लो। मैन कैन थ्रो, अच्छा हाँ, अलग से नहीं फेंका, उसी में पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज इन मीटर्स। उसी केस में पूछा है, उसी केस में पूछा है, तो उसी केस में पूछा मतलब ये और भी इजी है। थीटा कितना लेना पड़ेगा हमें? 45 डिग्री ना। उसी केस में पूछ रहा है कितना वो राइज करेगा, 45 ऑन। सो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। सो हाइट मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। सो साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। सो विच इम्प्लाइज हाइट मैक्सिमम will be 1/4 into u square by g, and u square by g is what? 80 meter. So height maximum होगा 1/4 into 80, that is 20. So height maximum is 20. Okay. मैंने क्या पकड़ लिया कि पहले केस कि एक बार जब वो मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका था तो 80 मीटर गया था, जब दूसरी बार वो फेंकेगा और मैक्सिमम हाइट तो कितना जाएगा, बट ऐसा नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब वो मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका था उसी केस में वो कितना हाइट को राइज करेगा, दैट इज 20। Am I clear? समझ गया सबको पॉइंट ये? इसी था क्लियर बेटा ये कैलकुलेशन? Yes. ओके, डायरेक्टली था फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो 22 हो गया। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? A force of 750 Newton is applied to a block of mass 102 kg. Prevent it from slipping a plane of inclination at 30 degree to the horizon. If coefficient of static and kinetic friction between the block and the plane is 0.4 and 0.3 respectively, then the frictional force acting on the block is. Fine. So we are having a inclined plane here, और inclined plane का angle of inclination कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। Like this we have, इस पे हमने एक ब्लॉक को रख दिया। So we are keeping a block here. So प्लेस किया है, एंड ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है। So force of 750 Newton is applied on the block of mass 102 kg to prevent it from slipping. और कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स जो आप लगा रहे हो 750, क्या करेंगे? फ्रिक्शन पूछ रहा है। अच्छा, म्यू एस दिया है 0.4 आई गेस। हाँ, म्यू एस दिया है 0.4 स्टैटिक फ्रिक्शन। So coefficient of static friction they have given us is 0.4 and limiting friction दिया 0.3 value of friction। चलो देखते हैं। पहली बात तो इधर लग जाएगा इस पे mg, कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाता है? mg of cos थीटा, this side will be having mg of sin थीटा। अगर हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा और ऑफ कोर्स ये नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। लेट्स से फ्रिक्शन किधर लगता है? फोर्स आपने लगाया कितना? 750। एक काम करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ डैश mg sin थीटा। एफ डैश
is mg of sin theta. So let's get the value of this first. कितना होगा? f dash is equal to 102 into what? 102 and into 10 into sine of 30 degree. ये आएगा ना रिलेशन में. So what will be f dash? 102 into 10 sine 30 degree is 1 by 2. So this will get cancelled. 5 हो गया. f dash कितना हो जाएगा? Is it 510 Newton? होगा ना? 510 न्यूटन. सो नीचे जो वेट लग रहा है, यानी एफ डैश जो एक्ट हो रहा है वो सिर्फ 510 न्यूटन, और आपने कितना फोर्स लगा दिया? 750 न्यूटन का. 750 न्यूटन लगा दिया, राइट? अगर ये 750 न्यूटन लगा दिया है, अच्छा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? चेक कर लेते हैं जरा. मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है स्टैटिक में? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 102 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2. ये हो गया 5. एफ एस कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 510 इंटू √3. कैंसिल हो जाएगा. 4/20. सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन मैक्सिमम? 204 इंटू √3. कितना लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन? I'll check in the calculator. 204 into 1.732, 353. फ्रिक्शन लग सकता है 353.328 न्यूटन, राइट? इतना लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन. सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg ऑफ cos 30. तो यहाँ से करके मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला, विच इज 353.328 न्यूटन लग रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन. लेकिन इधर हमने 750 लगाया, दिस इज 510. तो अगर इसको रोकना है तो मुझे फ्रिक्शन कितना चाहिए? क्या लगेगा फ्रिक्शन? सो फ्रिक्शन इस केस में कितना होगा? 750 माइनस ऑफ 200 750 माइनस ऑफ 510, 240, विच इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में रहेगा. बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. बॉडी रेस्ट में रहेगा क्योंकि जो फ्रिक्शन आ रहा है ना 240 न्यूटन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा. और मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना आप फोर्स लगाते हो. सो द करेक्ट आंसर विल बी 240. इट्स अ गुड क्वेश्चन. Am I clear? समझा क्वेश्चन सभी को? नाइस है, समझ गया बेटा ये कैलकुलेशन पूरा. सबसे पहले मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला था, क्योंकि अगर ये जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड था, अगर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता तो ऑब्वियसली वो काइनेटिक में चला गया होता, तब ये लगा रहता काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए. लेकिन फिलहाल जो मुझे फ्रिक्शन चाहिए वो 240 न्यूटन है, और 240 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है. इसका मतलब अभी भी ये स्टैटिक में ही है, और स्टैटिक में फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना आप फोर्स लगाते हो. तो एक्स्ट्रा फोर्स जो मैंने लगाया वो 750 माइनस 510 था, तो 240 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन. विषय क्लियर है? कैलकुलेशन ये
ऋषि कैलकुलेशन क्लियर है बेटा कि कुछ डाउट है इसमें? हाँ सर क्लियर। ओके, नाइशा आपको कैलकुलेशन क्लियर है कि डाउट है? क्लियर। वेरी गुड, इट्स अ गुड पॉइंट, सोचना पड़ेगा हम फ्रिक्शन को लेकर। दिया आपको क्लियर है कैलकुलेशन? या सर। ओके, इशिता एंड अंकिता, इज इट फाइन विद द कैलकुलेशन बेटा, बोथ ऑफ यू? या सर। ओके, अंकिता आपको कैलकुलेशन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, a body is sliding down an inclined plane having coefficient of friction 0.5. If the normal reaction is twice that of the resultant downward force, देखते हैं करके इसको। सो क्वेश्चन में व्हाट दे आर सेइंग कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दिया है, नॉर्मल रिएक्शन is twice of resultant downward force. So आपसे पूछा गया फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चलो देखते हैं, स्केच क्वेश्चन में वी हैव लाइक दिस कि आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो थीटा, जिसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। वी हैव अ ब्लॉक हियर लाइक दिस, इस पे नीचे मान लीजिए लग रहा है mg, सो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg ऑफ cos थीटा, द कंपोनेंट हियर विल बी mg ऑफ sin थीटा। वी हैव नॉर्मल रिएक्शन इधर एंड फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी फ्रिक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इनटू mg ऑफ cos थीटा। सो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो व्हाट विल बी f नेट, mg ऑफ sin थीटा माइनस ऑफ mg cos थीटा। और म्यू का वैल्यू दिया है शायद क्वेश्चन में 0.5, सो दे हैव गिवन अस म्यू एज 0.5। अब चलिए जरा लॉजिक के साथ में, तो क्या कह रहा है कि जो मेरा एफ नेट है, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन है, वो ट्वाइस है। सो दे आर सेइंग नॉर्मल रिएक्शन इज ट्वाइस ऑफ mg cos theta 2 of mg sin theta minus 0.5 mg cos theta. So this will be, it is here mg cos theta by 2 is equal to what, mg of sin theta minus 0.5 का मतलब हो गया mg of cos theta by 2, ठीक है। सो अगर हम इधर लेकर आ जाएंगे इसको सॉल्विंग के लिए, सो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, दैट mg of cos theta by 2 cos theta by 2 mg of sin theta we are having here. So अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ये mg cos theta हो जाएगा is equal to mg of sin theta, mg will get cancelled, so I'm having tan theta as 1, theta will be equal to what, am I clear? Am I clear with this, everyone? विषय क्लियर है बेटा कैलकुलेशन इसका? हाँ सर। ओके, चलो आगे बढ़ो।
So done with this question number कौन सा था 24. Question number 25. A body takes time t to reach the bottom of an inclined plane of inclination theta with the horizontal. If the plane is made rough, it will take the time 2t. The coefficient of friction on the rough surface is. So फर्स्ट केस में क्या कह रहा है that I am having a inclined plane like this और ये स्मूथ है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और ये स्मूथ सरफेस है. ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ से एक ब्लॉक को छोड़ा है. ऑब्वियसली क्या होगा, इसे इस पे mg लगेगा. Here on this side I'll be having what, mg of cos theta, नॉर्मल रिएक्शन, mg sin थीटा, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, g sin थीटा. टाइम इसको t लग रहा है, सो इफ वी गो विद दिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इनिशियली 0 होगा. सो l इज इक्वल टू हाफ g sin थीटा टू व्हाट t स्क्वायर. इसको आप रखिए अपने पास. नाउ सेकंड केस में चलते हैं, जब आपका रफ सरफेस है. So we had a rough surface here और इसके ऊपर ये वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. अब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, so here it will be mg of cos थीटा, mg of sin थीटा. इस बाजू में क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, इधर हो गया फ्रिक्शन, एंड दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और आई कैन से फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू mg of cos थीटा. सो f नेट कितना हो गया, mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा. सो मास इनटू एक्सेलरेशन, mg को बाहर निकाल दो. so, कितना हो जाएगा, g को निकाल दो. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू g इंटू कॉस थीटा. so m से m कैंसिल हो. so acceleration will be equal to g into sin theta minus of cos theta. फिर से लगाइए यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशंस. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अभी ये l गया है, फिर से इनिशियली 0 है, टाइम 2t हो गया, एंड प्लस वी हैड कितना हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू g sin थीटा माइनस ऑफ म्यू cos थीटा into 2t का स्क्वायर. So L will be equal to half g sin theta minus mu cos theta is equal to 4t square. ये मेरा इक्वेशन नंबर. ठीक है, अब क्या करेंगे, सो विल कंपेयर बोथ द इक्वेशन. सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर हम कंपेयर कर देंगे तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा टू 4t स्क्वायर. हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर वाला टर्म विल गेट कैंसिल. सो आई एम हैविंग साइन थीटा is equal to what, 4 sin theta minus of 4 mu cos theta. This will come this side, 4 mu cos theta d of sin. So mu का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4 here sin theta by cos theta. So which means the mu will be equal to what, 3/4 of 10. Is it clear? समझा कैलकुलेशन सभी को?
Naisa, do you had the calculation? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट करके खत्म करेंगे आज का लेक्चर, सो विल कंप्लीट दिस टुडे। ओके, सो दिस इज डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? A block of mass 200 kg is being pulled up by a man on an inclined plane of inclination 45 degree as shown in figure. The coefficient of static friction is 0.5. Each man can only apply the maximum force of 500 Newton. Calculate the number of men required for the block to just start moving up the plane. ये easy question है। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ऐसा हमारा सरफेस है। We had inclined plane here. Yes. इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, एंड इसके साथ ऐसा थ्रेड गया है, एंड वी हैड अ पुली हियर। इसे करके इधर फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वी नो कितना दिया है, 45 डिग्रीज, एंड ब्लॉक का मास 200 kg है, और म्यू दिया है 0.5, है ना? कैसे करोगे? फिर से वैसा ही कहानी, mg लग गया, mg cos of 45 degree, so here it will be, इस साइड में लगेगा इस पे mg sin of 45 डिग्री, और नीचे लग जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि इसको ऊपर खींचना है। तो आपको फोर्स कितना चाहिए मिनिमम जस्ट मूव करने के लिए? सो फॉर जस्ट मूविंग ब्लॉक, जो मेरा फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? mg ऑफ sin 45 डिग्री प्लस ऑफ व्हाट? फ्रिक्शन। सो कितना फोर्स लगेगा? mg ऑफ sin 45 डिग्री प्लस म्यू mg cos ऑफ 45। m कितना दिया? 200 इंटू 10 इंटू 1/√2 प्लस 1/2, 0.5 दिया मतलब 1/2, 200 इंटू 10 to 1/2। इज इट फाइन? कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? दिस इज 100। सो क्या रिजल्ट आएगा? जो फोर्स आपको चाहिए वो, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 2000/√2 प्लस 1000/√2। अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? 3000/√2। अगर हम रेशनलाइज कर लूँ तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 3000/2 इंटू √2, 1500। √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज 1.41, सो आई विल टेक 1.4, कैंसिल हो गया। सो F विल बी इक्वल टू 150 इंटू व्हाट? 14। सो F मेरा कितना हो गया? 150 इंटू 14। जैसे क्या रिजल्ट आएगा? 150 इंटू 14 इज 2100। F हो गया 2100, राइट? मान लेते हैं कि वी नीड n नंबर ऑफ n पर्सन्स हमें चाहिए, n इज द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड। जो आदमी आपको लगा है वो n है, और एक आदमी कितना फोर्स लगा रहा है? मैक्सिमम 500 न्यूटन। सो आई कैन से n इंटू 500, आई नीड 2100। कितना हो जाएगा? 21/5 का 20, 4.2। ऑब्वियसली आदमी पॉइंट में नहीं रहेगा, सो 4.2 का मतलब हो गया 5, बस 4.2 है, इसका मतलब हो गया 5, एंड आई एम हैविंग 4.2, बट आदमी 0.2 में कैसे रहेगा? तो
5 लेना पड़ेगा, will be required. Is it clear? अंकिता, दिया, both of you clear है बेटा कैलकुलेशन ये? Yes. So we have done with this. एक कितना बच गया? 3 क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं फिर दो बात में। चलो ये वाला कर लेते हैं एटलीस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ बुलेट व्हेन फायर्ड एट द टारगेट with velocity of 100 meter per second, it penetrates into 1 meter. If the bullet is fired at the similar target with a thickness of 0.5 meter, then it will emerge from it with a velocity of. Easy question है. So first case में क्या कह रहा है? What they are saying us in first case? First case में क्या कह रहा है? आपने बुलेट को फायर किया था 100 मीटर से, तो पेनिट्रेट कितना किया? वो 1 मीटर. सो लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. दिया नहीं है, बट वी हैव टू एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा. फाइनल 0 हो गया. इनिशियली आपने 100 से एक बुलेट को फायर किया, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 1, क्योंकि 1 मीटर वो पेनिट्रेट किया. सो इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा 50. so, यानी रिटार्डेशन जो होगा वो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा. सेकेंड केस में कितना जाना है? सिमिलर टारगेट है, रिटार्डेशन सेम रहेगा. अब ये 0.5 मीटर पेनिट्रेट कर रहा है. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x. if the bullet is fired with at the similar target, तो सेम बुलेट है, तो इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन माइनस ऑफ 5000 इंटू 0.5, ये 1 हो जाएगा. सो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस ऑफ 5000. सो v स्क्वायर कितना हो गया? 5000. सो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5000. सो v कितना होगा? 10 रूट. इज इट क्लियर? कैलकुलेशन बराबर किया ना? ठीक. समझ में आ गया बेटा कैलकुलेशन सबको? नाइसा, इज इट क्लियर बेटा कैलकुलेशन दिस प्रॉब्लम? Yeah. ओके, बाकी सबको क्लियर है? सर तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ना कौन सा ऑप्शन है. पहला वाला होगा ना, इसको दिया है उन लोगों ने 50√2. सो अगर आप इसको लेकर जाओगे रूट के अंदर, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 2. सो 2500 इंटू 2 मतलब v कितना हो गया? अंडर रूट 5000 हो गया ना? हाँ. द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. और हम लिखेंगे यहाँ पे, सो v विल बी इक्वल टू व्हाट? 50 इंटू रूट. Am I clear? First option. अंकिता, दिया क्लियर है बेटा प्रॉपरली? हाँ सर. ठीक, दिया आपको? Yes. ओके, ठीक है.
विल क्लोज फॉर टुडे। जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और स्क्रू केज बचा है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इज इट फाइन? Yeah, sir. सर टेस्ट 3 हाँ, टेस्ट 3 भी डिस्कस करेंगे, भी करेंगे डिस्कस। एक बार टेस्ट 3 हो जाएगा ना, फिर एक टेस्ट और लूंगा 45 क्वेश्चंस का ओनली ऑन मैकेनिक्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ाने से पहले मुझे मैकेनिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो दोबारा सब कुछ कराना है, और ऐसे ही करेंगे, इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो टेस्ट 3 जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा, विल हैव वन मोर टेस्ट ऑफ 45 क्वेश्चंस, प्रॉपर नीट पैटर्न, और वो प्योर मैकेनिक्स पे होगा, मतलब काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉ, उस वाले पे पूरा होगा। उसके बाद वो टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन, तो करने में मजा आएगा। इज इट क्लियर? Yeah, sir. चलो ठीक, विल क्लोज फॉर टुडे।